গত 7ই এপ্রিল ডিআরজেপি লেবার ওয়েলফেয়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে পার্ক স্ট্রিটে একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়, যার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী অজিতেশ পান্ডে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী সৌম্যশঙ্কর বসু। ভারত একটি সেকুলার ও ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, আমরা সবাই জানি। আর সেকুলার অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক এই দুটো হচ্ছে আমাদের কান্ট্রির একটা বেসিক থ্রেড, দ্য বেসিক ফ্যাব্রিক অফ আওয়ার নেশন। তো এই দুটো যদি নষ্ট হয়ে যায়, ভারতের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে ভারত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই এইসব নিয়ে ভাবি, কিন্তু আমরা তো আগে মানুষ, তারপর আমরা এইসব ধর্ম মানুষ তৈরি করেছে, ঈশ্বর তৈরি করেননি। ঈশ্বর সব এক। আমরা দেখেছি আমাদের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, যত মত তত পথ। তো সেই জায়গা থেকে আমরা আগে মানুষ, তো হিউম্যানিটি আমাদের প্রথম কর্তব্য, সেটাই আমাদের প্রথম রিলিজিয়ন, যদি রিলিজিয়ন হিসেবে ধরা হয়। আর সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি অ্যাজ আ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এটা মনে করি, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম কোনো দিন মেশানো উচিত নয়। রাজনীতির জায়গায়, ধর্ম ধর্মের জায়গায়। রাজনীতির সঙ্গে যদি ধর্ম মেশানো হয়, সেটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস মিক্সচার, অ্যান্ড ইট উইল ডেস্ট্রয় দ্য নেশন, ইট উইল ডেস্ট্রয় দ্য হিউম্যানিটি। তো আমি সবসময় অনুরোধ করব, যে কোনো পার্টির লোকই হোক আপনারা, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশাবেন না, বা যারা রাজনৈতিক রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা কোনো যেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে না যায়। বার্তা দিতে চাইছেন আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল যে ইউনিটির একটা পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে, এইভাবে জায়গা জায়গায় ইফতার পার্টি করে বলা হচ্ছে যে আমরা সবাই মানুষ, আমরা এক, কিন্তু একজন এরাম আছে যে বলছে যে না আমরা এক না, আমরা হিন্দু মুসলমান। না না না, আমি তো এসে আপনারা তো ছিলেন যখন আমি কাজ ছিলাম, এবং আমার সামনে কত হিন্দু ভাই, আমার বাঁ দিকে হিন্দু ভাই, এই হিন্দু দেখুন ডান দিকে মুসলিম, আমরা তো একসাথে বসে খেলাম। যারা বলছে তারা ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে মানতে চায় না। যেমনি ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আগে সাভারকার ব্রিটিশদের কাছে মুচলেখা দিয়েছিল, এরা হচ্ছে ব্রিটিশদের দালাল, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনেও সেই দিন ছিল না, আজকেও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। 2014 পর ভারতকে কোথায় দেখছেন? খুব খারাপ অবস্থায়, কষ্ট লাগে। যদি 2024 ফিরে আসে 2014 কাহিনীটা, হিস্ট্রি, কী হবে তখন? আরও খারাপ হবে। হিন্দু মুসলিমের রাইট শুরু হবে। রাম মন্দির করেছে, ভালো কথা, আমিও হিন্দু, রাম মন্দির হয়েছে খুব ভালো। বলুন তো, রাম মন্দির করে কটা গরিব মানুষের ভালো হয়েছে? আমি হিন্দু, আমি চাই রাম মন্দির হোক। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচা করে রাম মন্দির হচ্ছে, আর এদিকে ভারতবর্ষের ভুকা সূচকে পিছিয়ে যাচ্ছে। जेपी लेबर वेलफेयर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से एक अफ्तार पार्टी दिया गया था। यहाँ आके ये पता चला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस अफ्तार पार्टी में थे। यहाँ पे एक मैसेज जाता है यूनिटी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में हमेशा कभी भी हिंदू मुसलमान का बीच में फ़र्क नहीं रहा है। हम लोग, और ख़ास करके पश्चिम बंगाल में मुसलमान दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं, और हिंदू भाई जो है वो इफ्तार पार्टी और ईद में पार्टिसिपेट करते हैं। बंगाल में हमेशा से गंगा जमुना का तहज़ीब रहा है, और हम लोगों के बीच में कभी भी आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात नहीं है। हम लोग हमेशा शुरू से बंगाल में एक साथ हम लोग रहे हैं, और हम लोग जो है कभी भी किसी भी कम्युनल फोर्स के सामने, बीजेपी जैसा कम्युनल फोर्स के सामने कभी भी हम लोग झुके नहीं हैं, और हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता का हम लोगों ने इतिहास बनाया है, चाहे आपका NRC CA के टाइम में हो और उसके बाद हो। तो आज भी इफ्तार पार्टी में हमारे काफ़ी सारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे। इनफैक्ट आज के जो ऑर्गेनाइज़र जो थे श्री अजितेश पांडे, जो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, जो आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे, वो मुसलमान और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए थे। वो खुद एक हिंदू है, लेकिन इससे साबित होता है कि हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का यूनिटी कितना अच्छा है। सर, इस मुल्क में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, हेट स्पीच दी जा रही है। इससे मुल्क कहीं ना कहीं मुल्क का जो अपना एक वक़ार था वो मजरू हो रहा, जख्मी हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज RSS और BJP वाला वही काम कर रहा है जो 1947 से पहले जो अंग्रेज़ और ब्रिटिश सरकार किया करते थे। इन लोगों का मेन मोटिव था डिवाइड और रूल, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाओ और हुकूमत करो। एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से एक
इफ्तार पार्टी का जी ऑर्गेनाइज किया। जी। सबसे पहले तो आप अपने फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। तो हमारा ये फाउंडेशन जो है वो डॉक्टर जेपी जैसा आप देख रहे हैं, वो हमारे दादाजी के नाम का है, डॉक्टर जगन्नाथ पांडे, और वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के वो फाउंडर मेंबर थे गांधी जी के साथ, और वो हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे, प्रैक्टिस करते थे। तो उन्हीं के नाम पे ये फाउंडेशन हमारे स्वर्गीय पिताजी ने इसको चालू किया और उसका काम हम आगे करने का काम कर रहे हैं। और इस फाउंडेशन के तरफ से हम लोग आज यहाँ इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं पार्क स्ट्रीट में। और इस इफ्तार पार्टी में देखिए हम लोग शुरू से ही इस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस, हम लोग आज आप देखेंगे देश में जिस तरह का माहौल है, और अभी इलेक्शन भी सामने आ रही है, तो जिस तरह का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बारे में, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, जो भी विरोधी है उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरह का एक माहौल में हम लोग ने इस इफ्तार के माध्यम से लोगों के बीच में इस बात को रखने का प्रयास किया है कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हम लोग एक हैं, और इस धर्म के बात में हम लोग को नहीं लड़ना है, हम लोग को सब कोई को साथ में मिल के ऑर्गेनाइज साथ में रहना है और एकजुट होकर आगे बढ़ना है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जी कांग्रेस को कितनी फायदा और कामयाबी मिलेगी, इस बारे में कुछ बताइए। कामयाबी आप देखिएगा इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को मेरा पूरा आशा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल जी ने एक एक स्टेट को पैदल चल के युवाओं से मिले हैं, बेरोज़गारों से मिले हैं, महिलाएं से मिले, उनके दर्द समझे हैं। हम लोग ने भी अपने नेता को अपने पास से देखा है, हमारे सामने देखा है, और वो जिस तरह मुद्दा का बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हुआ है। अगर कोई शिक्षित आदमी उस मैनिफेस्टो को पढ़ता है और भाजपा का मैनिफेस्टो को पढ़ता है, तो ये मेरे को बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ही देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दा के ऊपर आपसे वोट मांग रही है, ना ही कि जाति, ना ही कि धर्म, ना ही कि इंडिया पाकिस्तान चाइना से लड़ के आप काम कर रहे हैं। खाली ये सब गुमराह करने की बात है। युवा वोटर्स को क्या कहेंगे इस बार इलेक्शन में? युवा वोटर्स से मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग जब भी वोट देने जाएं तो कृपा करके अपने बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, ना ही कि आपको जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तान से लड़ने का काम सेना का है, वो लड़ते रहेगी, उसमें हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोगों को सेना को मनोबल देना है वो हम लोग देंगे, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना है, हमारे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, आने वाले जनरेशन्स के बारे में सोचना है। इस सोच को रखते हुए आप वोट दें। हिंदुस्तान का जनता को अपना आज़ादी को आपको बना के रखना है। ये आज़ादी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आज जो मोदी का राज चल रहा है, हर इंसान का आज़ादी को वो लोग ख़त्म कर रहा है। महिला बोलिए, कोई पुरुष बोलिए, जो सारा हिंदुस्तान का आज राज चल रहा है, ये राज पूरा हिंदुस्तान को ख़त्म करके देगा। आप देखिए, हिंदू का पूजा का कोई एक जब संस्कार होता है, मुसलमान समाज का भी एक संस्कार है इफ्तार, एक जो भाईचारा, ये भाईचारा का संदेश आने वाला दिन में जो आज हिंदुस्तान का धरती का पर जो ये बात हो रहा है, जे हमारा जो नेबरर्स है उनका साथ हम कैसे संपर्क बना के रखें, कहाँ ये सब तो आज डिस्ट्रॉय करने का एक ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, उसका नाम भाजपा। और इसका कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टी होना चाहिए, और हिंदू समाज का भी जितना आज पर्व है, जितना उनका संस्कार है, वो भी होना चाहिए। सर 2014 से पहले इतना हिंदू मुसलमान नहीं होता था जितना इन 10 सालों में हम लोगों ने देखा है। आज ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, आपका घर में जो लोन था वो लोन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब आपका जो बेटा बेटी, आपका बीवी, उसको अपने क्या बताएंगे, तो अब दूसरी कोई चीज़ को आप खींच के लेके आएंगे। 2014 में हिंदुस्तान का लोन था 55 लाख करोड़ रुपया, अभी 195 लाख करोड़ रुपया हो गया, अभी वो 172 लाख करोड़ रुपया हो गया। एक बार बताइए, जे हिंदुस्तान कैसे आगे चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है। इफ्तार पार्टी है जगदीश प्रसाद पांडे, तो ये उनका पुत्र ग्रैंडसन अजितेश होल्ड कर रही है। तो अजितेश पांडे ब्राह्मण है, और मेरे बाजू में बैठा है हमारा INTUC का कमार भाई, INTUC का प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल का। इतना सारे माइनॉरिटी भाईज है और हम लोग हैं, इससे बड़ा प्यार कहाँ मिलेगा आपको? यही तो सबसे बड़ा प्यार है।
यही तो हिंदुस्तान है। 2024 में इलेक्शन होने वाला है। हाँ 2024 में इलेक्शन होने वाला है हाँ, लोकसभा का। हाँ। और कहा जाता है कि शायद अगर फिर से वो शैतान आ गया तो क्या मुल्क का संविधान चेंज कर देगा? तो अभी तो इमरजेंसी ही चल रहा है। इंदिरा जी ने घोषित इमरजेंसी किया था, उसलिए हम लोग शर्मिंदा हूँ, हम लोग बोले हैं, सोनिया जी खुद भी बोली है। मगर ये अभी तो अघोषित इमरजेंसी है। आपको चलने फिरने का कहीं है? भरभरा राव को उठा दे रहे हो, सोमा सेन को उठा दे रहे हो। 80 साल का बूढ़ा क्या आपको खिलाफ जाएगा? 82 साल का बूढ़ा क्या आपका खिलाफ जाएगा? आपको लेके अरमान नक्सल बना दे रहे हो। जो उसको खिलाफ बोल रहा है सबको उठा दे रहे हो। ईडी सीबीआई भेज दे रहे हो। चिदम्बरम साहब को आपने जेल भेज दिए हो। और क्या चाहिए? कौन सी इमरजेंसी और बाकी रह गया? संविधान है कहाँ? संविधान है क्या? और बीजेपी कहाँ है? मैं तो कहीं बीजेपी देख रहा ही नहीं। मोदी पार्टी है। जो लोग बीजेपी कर रहा है, मेरे क्वेश्चन उन लोग को है, आप लोग किसका पार्टी कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी या मोदी पार्टी? पहचान है, गंगा जमनी तहजीब है। हम लोग आज इस तहजीब से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। लोग हमारे दिलों में नफरत का बीज बो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जब मैं एक भारतीय हूँ, भारत की हर क्षेत्र में हर इंसान की दिल दर्दी, प्यार मोहब्बत सबसे लगे हुए है। धर्म बाद में आता है, पहले इंसान का पहचान होता है, और पहचानने उसका पैगाम आता है जो तुम आओ, दिल में लेके आओ, कुछ बताओ। और सबसे पहले ये चीज़ सोचना चाहिए, जो मैं भारत देश दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर हर क्षेत्र के आदमी भारत में रहते हैं। बोलते भारत एक महान देश है। जिस देश में गंगा भी रहते हैं, जमुना भी रहते हैं, और उसका सरस्वती भी लहरते हैं, और बिपाशा भी है। लेकिन एक बात सुनिए, पहले जब मेरे भारत है तो यहाँ पर परिचित होता है, पहले मैं भारतीय हूँ, उसका बाद क्या हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि जैन है, उसका पहचान बाद में होगा। सर भाईचारगी का मैसेज क्या देंगे? सिर्फ भाईचारगी একটা সুন্দর পবিত্র মাস সেটা একসাথে সেলিব্রেট করছে। আমি বিশ্বাস করি সেলিব্রেশন এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের মধ্যে খুশি ছড়িয়ে দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ধর্মীয় যে ডিফারেন্সটা সেটা না আনি, আর সবাই মিলে একসাথে, যে আমিও একজন মানুষ আপনিও একজন মানুষ, এইটা মেনে একসাথে যদি আমরা সেলিব্রেট করি কিছু, তাহলে সেটা অনেক সুন্দর একটা মেসেজ দেয়, আর একটা ভালো জিনিস সমাজকে শেখায় যে কী করে হিংস্রতা ভুলে গিয়ে একসাথে মিশে থাকা যায়। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল আমাকে এখানে ইনভাইট করা হয়েছে। আমি তিয়াশা বিশ্বাস, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের স্টেট সেক্রেটারি। আমার নাম সৌম্যশঙ্কর বোস। আমি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের মহাসচিব পশ্চিমবঙ্গের। তাছাড়া গ্লোবাল পিসের আমি কনভেনার ওয়েস্ট বেঙ্গলের, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গান্ধী গ্লোবাল ফ্যামিলির আমি কোঅর্ডিনেটর ইন চিফ ইস্টার্ন জোন।